Uh, Hello everyone, and I hope all my dear students are doing really great. So here I'm again with my YouTube channel Patho with MK. So which I had told in my last lecture with proper introduction that I'll be dealing with the chapters in pathology according to NMC guidelines. So I had taken one lecture on cell injury. So this is my second lecture. Sorry for being late this time in uploading my second lecture. Now onwards, I shall be on time and will try uploading my lectures as frequently as possible. So, as you all know, today is National Pathology Day. So I wish you all a happy National Pathology Day. Why we celebrate it? Please go and read once. So here I'm with the second lecture. So necrosis, in last lecture what we had discussed, necrosis, the basic introduction part. Then in detail we had discussed regarding necrosis, patterns of necrosis. So today what we'll be focusing is proper apoptosis. So these all I had shown you in my last class that we'll be dealing with the core competencies as well as few non-core competencies, but a National Medical Council has given these competency chapter wise. So we'll be dealing one by one. So necrosis we have finished. So we are now today we'll be dealing with apoptosis. So see necrosis हमने क्या पढ़ा था? It was an accidental cell death. तो usually जो हम cell death common होता है that is necrosis. ठीक है वो accidental होता है. Apoptosis is programmed and regulated. So in necrosis what we had seen the basic difference in both the type of cell death is what? Necrosis में सेल मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन रप्चर होता है सेलुलर कंटेंट्स बाहर आते हैं सो यू हैव अ लोकल जो सेलुलर कंटेंट्स एंड एंजाइम्स बाहर आ रहे हैं सो दे विल इंसाइट अ लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सो व्हाट यू विल सी इन फॉर्म ऑफ एट द सीन ऑफ इंसिडेंट और एक्सीडेंट यू कैन से जहां पे भी मेम्ब्रेन रप्चर हो रही है एंड जो सेलुलर कंटेंट है एंजाइम्स बाहर आ रहे हैं so they will cause local inflammatory response. So inflammation we see in necrosis that is totally absent in apoptosis. So apoptosis is what? It's a regulated cell death. So it is defined, regulated or programmed cell death आप कह सकते हो इसको और इसमें there are mediators of molecular, it's basically a tightly regulated molecular pathway which leads in culmination of cell death. So as I said, it's a clean death. Cell death is caused with surgical precision. So this diagram is there in your Robbins. Fine. So left hand side में आप क्या देख रहे हो? एक normal cell है, ठीक है? पहले हमने पढ़ा था कि एक injurious agent आता है, so वो क्या करेगा? फिर उसके बाद cell हमारी ट्राई करती है कि हम अडेप्ट कर सके उससे ठीक है सो बट वो भी नहीं कर सकता तो फिर वो इंजरी की तरफ बढ़ता है ठीक है सेलुलर अडेप्टेशन के भी टाइप्स है जो कि हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में पढ़ेंगे ठीक है तो इसमें क्या देख रहे हो आपकी रिवर्सिबल इंजरी हुई तो इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं दिस हैड शोन यू इन लास्ट क्लास आल्सो जस्ट टू रिवाइज वंस इसमें आप देख रहे हो हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग हो रही है स्वेलिंग ऑफ योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो सेल के सराउंडिंग आप देख रहे हो मेम्ब्रेन ब्लेब्स फॉर्म हो रहे हैं बट यहां तक भी देयर इज अ पॉइंट ऑफ रिटर्न द सेल्स कैन सर्वाइव एंड अंडरगो रिकवरी अगर वो इंजूरियस एजेंट हम रिमूव कर देते हैं तो वो सेल हमारा नॉर्मल बन जाएगा ठीक है बट अगर हमने स्टिमुलाई को हम नहीं रोक पाए या कॉज को हम नहीं ट्रीट कर पाए ठीक है सो द सेल विल अंडरगो progressive injury so here what you see is there is breakdown of plasma membrane so leakage of the cellular contents so enzymatic reactions so बाहर ये देखो गोल गोल ये सारे हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं ठीक है लोबेटेड so आप इसमें लोबेशंस देख सकते हो this is not a mononuclear cells तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल को हम क्या कहते हैं पॉलीमॉर्फो पीएमएन कहते हो आप these are polymorphs जब आप डिफाइन जब इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट हम डिस्क्राइब करते हैं सेल्स में कि देयर इज लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन सो यू नीड टू से acute inflammation and chronic inflammation जब भी आप acute inflammation आप देखते हो कि सेल्स में acute कोई भी टिश्यू में acute inflammation है तो we are describing these polymorphs neutrophil is the predominant सेल WBC which is there ठीक है तो यहाँ inflammatory reaction बहुत हो रहा है necrosis में so inflammation is present in necrosis apoptosis you don't see inflammation जो आज हम पढ़ रहे हैं apoptosis यहाँ देखो this is a right hand side picture what you will see is this is a normal cell and here what you are seeing there is a condensation of chromatin टूट नहीं रहा कुछ membrane blebs form हो रहे हैं और आप देखो जो टूट रहा है that is it toto you have a cellular fragment ठीक है उस हर
एपोटोटिक बॉडी हम इसको कह रहे हैं। इस एपोटोटिक बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी, ठीक है, वो बाहर लीक आउट नहीं हो रही है, वो अपने सेलुलर कंटेंट्स बाहर रिलीज नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है, लोकल इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, नो एंजाइमेटिक रिएक्शंस एंड नो लोकल इन्फ्लेमेशन, ठीक है। फिर वो जो एक सेलुलर एपोटोटिक बॉडी रिलीज हो चुकी है उसको फिर फाइंड करेगा हमारा मैक्रोफाज सिस्टम जो है, फैगोसाइट करे, फैगोसाइटोसिस होगी, उस इंगल्फ करेगा उस एपोटोटिक बॉडी को। देखो, यू कैन सी स्ट्रेचिंग आउट आर्म्स अगेंस्ट द एपोटोटिक फ्रैगमेंट, सो दे आर ट्राइंग टू रिमूव इट, क्योंकि जो भी हमारे सेल डेड सेल्स है उसको तो रिमूव होना ही है, ठीक है। सो व्हाट इट इज डन बाय द phagocytic cells, so they will engulf it and remove it. So removal तो दोनों केसेस में होनी है, वहां भी phagocytes आते हैं, यहाँ भी phagocytes आते हैं, but apoptosis is like a hide and seek game, you know, the phagocytic cells, they have to find out where the apoptotic body is and then remove it. Fine, there is no, because there is no evidence in form of inflammation जो कि हम necrosis में देखते हैं, ठीक है। So coming to our apoptosis problem. So this is a type of cell death which is tightly regulated, or you can say programmed. So इसमें क्या होता है, you can say it's a suicide program which is tightly regulated by various factors. Here what happens, there is activation of your intrinsic enzyme which will degrade the cell's own DNA and nucleocytoplasmic protein. So as I shown you in the diagram, apoptotic cells जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड होता है, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट गेटिंग डिसरप्टेड, सो यू हैव अ एपोटोटिक बॉडी. So there is a portion of your cytoplasm as well as nucleus in the apoptotic fragments. Here important find is plasma membrane remains intact. ठीक है, so as I said कि वो produce me and find me वाला concept होता है, क्योंकि there is no evidence of inflammation, that cell has died. ठीक है, so phagocytic cells, they have to find and then kill the dead cells, remove the dead cells. So यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे सेलुलर कंटेंट बाहर निकले डेड सेल से, उससे पहले ही phagocytes come and they remove those cells in toto, right? So there is no evidence of any inflammatory reaction in your apoptosis. So this entity, as we say apoptosis, first recognized हुआ था 1972 में. So वो कुछ जब हम morphological study करते हैं तो then many scientists, or you can say they like जो रिसर्चर्स होते हैं, what they keep on doing is they keep on finding कि क्या क्या नॉर्मल है, abnormal cells से उनको क्या abnormal cells मिल रहे हैं. So it's all going on, the research things are always going on in various institutions, ठीक है. तो आप labs and institution, तो this they found that कि some membrane bound fragments है जो derive हो रहे हैं सेल से. So what are those? So they found it like falling off, Greek word है falling off. तो apoptotic bodies हमने देखा. So कैसा लग रहा है वो? It's like it looking like कि एक बड़े से सेल से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में छोटे छोटे सेल्स बाहर आ रहे हैं with proper cytoplasm and nucleus, ठीक है, with the mitochondrial bodies inside everything. So that's a complete toto thing, they are falling off without leakage of cellular content and rupture of plasma membrane is not there, ठीक है. So that's just like falling off. So programmed cell death. So here what happened, there is a role of many small genes. So जो कि हमारे इसमें रोल प्ले करते हैं एपोटोसिस में, ठीक है. So important characteristic जब भी आपसे कोई एपोटोसिस पूछता है, so what you need to remember is कि there is no loss of membrane integrity, your plasma membrane remains intact. अगर वो intact होगा तो बाकी दो तो होंगे ही नहीं ना. There is no leakage of your cellular content, no enzymatic reactions, no host reactions, no evidence of inflammation. So these are the characteristic point you have to remember. So cause of apoptosis, majority of cases of apoptosis, these are a part of a normal physiological process. जब भी कोई cell growth हो रही है, you can say cell turnover को maintain करने के लिए, the extra cells और जो cells use नहीं हो रहे हैं, those are need to be removed periodically from our body. So their role of apoptosis is important, ठीक है. So as a secondly, it can be as a result of pathophysiologic mechanism of cell loss. So physiological condition में कब देखोगे आप फिर? So see, majority it is in physiological situation where we find apoptosis. So it's death by apoptosis is usually a normal phenomenon. It's not accidental as we see in necrosis. Fine. So इसमें क्या होता है कि body tries to eliminate the cells जो कि हम हमारे requirement, it's not required for our
नॉर्मल फंक्शनिंग, ठीक है, और सेल्स के नंबर भी फिक्स्ड होते हैं, तो उस सेल के नंबर को मेंटेन करना भी हमारे बॉडी का पार्ट मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो इन एक्स्ट्रा सेल्स को और द सेल्स विच वी डोंट नीड फर्दर, तो उन सेल्स को वी नीड टू एलिमिनेट फ्रॉम आवर बॉडी, सो दैट अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। फाइन, सो जस्ट इमेजिन पर सेकेंड आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी, जो 1 मिलियन सेल्स का टर्नओवर होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, इन पर सेकेंड। सो इतने सेल दे अंडरगो डेथ बाय एपोप्टोसिस, सो देयर इज अ टर्नओवर ऑफ दिस, ठीक है। सो हियर डेथ ऑफ सेल्स बाय एपोप्टोसिस एंड द रिमूवल ऑफ बाय फैगोसाइटोसिस अकर, सो ये टर्नओवर है। सो टर्नओवर है हमारा पर सेकेंड 1 मिलियन सेल्स, एंड दिस इज अकरिंग बाय डेथ, सेल डेथ बाय एपोप्टोसिस। और फटाफट जब सेल डेथ हो रही है, उस सेल जो डेड सेल्स है उनको रिमूव भी करना है बाय द फैगोसिटिक सिस्टम। सो एग्जाम्पल्स है कुछ कुछ, सो यूल फाइंड इन डिटेल इन योर बुक्स ऑल्सो। तो जो भी फर्स्ट कॉज आप सपोज लेते हुए एग्जाम्पल कि जो भी सुपर न्यूमरी सेल्स है, सुपर न्यूमरी इज लाइक इन एक्सेस ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो जब भी सपोज कोई भी यू टेक योर पिना, सो एट बर्थ इट इज मोर बिग, ठीक है, तो धीरे 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 वो छोटा होता है कंपैरेटिवली टू कम टू योर नॉर्मल साइज। तो उसमें क्या इन्वोल्यूशन ऑफ योर प्राइमोर्डियल स्ट्रक्चर, जो पहले एट बर्थ जो स्ट्रक्चर बड़े थे, लिवर बीट इज वेरी, it's a like comparatively when you compare with the adult liver, it is, तो जो भी बॉडी का वो होता है एस्टिमेट, उसके अकॉर्डिंग इट इज मोर बिग, सो दैट कम्स टू योर रिग्रेस होती है उनकी साइजेस, ठीक है। तो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं तो दे रिग्रेस इन साइज विच आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड इन्वोल्यूशन। सो रिग्रेशन ऑफ द सेल साइज एंड नंबर, यू कैन से, तो दैट इज, एंड फाइनली दैट ऑर्गन इज मॉडल्ड इनटू योर मैच्योर टिश्यू, ठीक है। So extra cells, जो भी supernumerary cells है कोई भी organ में, that has to be removed, that occurs by your apoptosis. Then you have involution of hormone dependent tissue on hormone withdrawal. कोई patient अगर hormone आप withdraw करते हो तब भी cell death हो रही है, या hormone जो कि अंदर से हो रहा है, suppose menstrual cycle is a hormonal cycle, fine. So उसमें भी जब कोई menstruation, during menstruation what happens, there is shedding of your endometrial cells, ठीक है, so that shedding of the endometrial cells also occur by apoptosis, that's a regular cycle, fine. Then you have follicular atresia in menopause, जो भी ovarian reserve होते हैं they decrease with increasing in age, so as the female approaches the menopause age, तो क्या होता है, follicular atresia होगी, ठीक है। Similarly after weaning, so you see during lactation the size of the breast increases, why, because the mother has to feed the baby, but जब weaning होती है, weaning is what, it is the when the child stops feeding, stops breastfeeding, that is called weaning, okay. So regression of the lactating breast, the size also reduces, okay. So there also cell death occurs by apoptosis, the extra cells which are not required now, okay. The third example you can say इन प्रोलिफरेटिंग सेल पॉपुलेशन, देखोगे बच्चों में आप कोई भी इन्फेक्शन होता है, ठीक है, सो व्हाट यू सी कि सर्वाइकल लिम्फ नोड्स बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं बच्चों के, ठीक है। सो इन एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, सो दे आर मोर प्रोन फॉर नॉर्मल वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसमें देयर इज अ ग्रोथ ऑफ लिम्फ नोड। सो बट आफ्टर ट्रीटमेंट और आफ्टर लाइक द infectious agent is removed or the child recovers, so what happens, the lymph node regresses in size, ठीक है। तो वो सब में भी what happened, the cell जो एक्स्ट्रा बढ़ गए थे lymph node के, they will also regress. Similarly in bone marrow और thymus में जो हमारे lymphocytes है, they also regress. So these all are like जो भी proliferating cell populations है उनका turnover भी they die by apoptosis, ठीक है। Like in germinal center जब आप lymph node का structure आपने पढ़ा होगा histology में, anatomy में, तो क्या होता है, B lymphocytes जो होते हैं, जो germinal centers में होते हैं हमारे, when they are not able to express any useful antigen receptor, you can say if they are non-functioning, so they are removed by process of apoptosis. Homeostasis is what? Homeostasis is maintaining the normal physiological environment, ठीक है। वैसे ही जब हम इंटेस्टाइन का आप नॉर्मल हिस्टोलॉजी देखते हो, सो यू हैव क्रिप्ट्स, ठीक है, एंड विल्लाई, ठीक है। सो टू मेंटेन द एपिथेलियल सेल्स इन योर इंटेस्टिनल क्रिप्ट्स, so cell number has to remain constant, and that is called that. So extra cells होंगे, उनको they have to undergo cell death by process of apoptosis or elimination of harmful self-reactive lymphocytes. अगर कुछ conditions में, which you will read gradually, body में self-reactive lymphocytes भी develop हो जाते हैं, which is dangerous to our own body system, ठीक है। So we need to eliminate those self-reactive lymphocytes also. So that is by process of apoptosis. And then
फिफ्थ एग्जाम्पल है कि डेथ ऑफ द होस्ट सेल्स दैट हैव सर्व देयर यूजफुल पर्पस, मतलब उनका काम हो गया, ठीक है। जैसे कुछ कोई इंजरी हुई, वहां न्यूट्रोफिल्स आए, न्यूट्रोफिल्स ने इंगल्फ किया, phagocytosis हो गई, so that neutrophil has served its purpose, so that cell can they can undergo death by apoptosis after the immune response, ठीक है। so 5 conditions हमने पढ़े, ठीक है। एग्जाम्पल जहाँ पे सुपर न्यूमरी सेल्स ज्यादा हो रहे हो, ठीक है। देन आफ्टर यू विड्रॉ हार्मोन एज यू सी इन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स को रिमूव करने के लिए, और द ऑर्गन विच हैज होस्ट सेल्स विच हैव सर्व देयर पर्पस, दे कैन आल्सो अंडरगो सेल डेथ बाय एपोटोसिस। सो इन दिस ऑल कंडीशन हमने क्या देखा, जितने भी हमने एग्जाम्पल्स देखे, सेल डेथ कैसे हुई, ठीक है। हमने यूज किया उन सेल्स को, उन सेल्स ने अपना पर्पस सॉल्व किया, बट यू सी all those cells, they were deprived after they have served their purpose, or they are not needed, or they are extra in their number, तो उनको एक तरह से to cause death of those cells, what we did or what our body did, they deprived those cells of the necessary survival signals, so growth factors or their interaction with the extracellular matrix was stopped। तो जब भी कोई सेल को डेथ होगा, क्या होगा, जब आप किसी को खाना नहीं दोगे बहुत दिन तक, तो द पर्सन विल डाई अल्टीमेटली, ठीक है, बिकॉज बॉडी नीड्स एनर्जी। तो क्या होगा, इस सेम हम सेल्स के साथ भी यही, हमारे सेल्स के साथ भी यही सेम थिंग है, जो उनके ग्रोथ सिग्नल्स, अब ग्रोथ रिसेप्टर, उनको आप अवॉइड प्रिवेंट करोगे उनके उनको हेल्प करने में, तो दे विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द नेसेसरी ग्रोथ सर्वाइवल सिग्नल्स, सो दे विल अल्टीमेटली डाई। और यू कैन डू इज यू कैन गिव pro-apoptotic signal। pro-apoptotic means that will aggravate the process of cell death, ठीक है। pro-apoptotic factors होते हैं, वो रोल प्ले करेंगे to cause increased apoptosis in those cells, like जो हमने 5 एग्जांपल्स पढ़े हैं। so different types where apoptosis play their role in cell death। so ये था हमारा फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल कंडीशन में बहुत कम होती है एपोटोसिस, लाइक, ठीक है, बियॉन्ड रिपेयर, अगर सेल्स रिपेयर नहीं हो रहा, कोई डीएनए डैमेज हो रहा है जो कि हमारी बॉडी रिपेयर नहीं कर पाएगी, सो दे विल अंडरगो एपोटोसिस, दैट इज एक्चुअली अ पैथोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। कोई डीएनए डैमेज हो रहा है, कोई रेडिएशन थेरेपी चल रही है जहां सेल की इंजरी हुई, so those cells need to die, so they undergo death by apoptosis। then misfolded proteins accumulate हो रहे हैं, तो they also need to be removed from our body, because our body वो function में प्रोटीन जो होता है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, वो सब उस प्रोसेस में वो काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। so no role, so accumulation of misfolded protein, you need to remove those proteins, so that is done by apoptosis, ठीक है। then infections cases में कुछ एडिनोवायरस, HIV, या फिर कुछ हेपेटाइटिस बी वायरस में सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं ये वायरस, तो उन सेल्स को भी रिमूव करना है। so these are पैथोलॉजिकल कंडीशन। देन सम पैथोलॉजिकल एट्रोफी क्या होती है, सपोज कोई स्टोन है डक्ट में, ठीक है, पेनक्रियाटिक डक्ट है, वहां स्टोन है, तो क्या होगा, एट्रोफी ऑफ योर पैनक्रियास, तो उसके बियॉन्ड जो भी फंक्शनिंग सेल्स होंगे वो धीरे धीरे डेड हो जाएंगे, बिकॉज दैट इज क्रिएटिंग अ ब्लॉक, दैट स्टोन इज क्रिएटिंग अ ब्लॉक इन द पेनक्रियाटिक डक्ट जो है, तो वो न्यूट्रिशन भी या जो भी सप्लाई नहीं हो पाएगा, दैट पैनक्रियास विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली, सो दैट इज अ पैथोलॉजिकल एग्जांपल ऑफ योर पैथोलॉजिकल एट्रोफी, राइट। So see how the cell will look like। सेल की डेथ तो हो गई एपोटोसिस में, बट हम देखेंगे कैसे कि सेल लगता कैसा है हमारा, ठीक है। सेल श्रिंक होती है इसमें, ये हमने डिफरेंस में पढ़ा है नेक्रोसिस और एपोटोसिस के, ठीक है। इन एपोटोसिस सेल साइज इज रिड्यूस्ड, ठीक है, साइटोप्लाज्म इज डेंस इओसिनोफिलिक, पिंक दिखता है, ठीक है, ऑर्गेनली मोर टाइटली पैक्ड, सेल छोटा हो रहा है, श्रिंकेज, ऑपोजिट टू दैट अकर्स इन नेक्रोसिस वेयर देयर इज सेलुलर स्वेलिंग, फाइन। देन क्रोमैटिन कंडेंसेशन हो रही है, ठीक है, जो न्यूक्लियर क्रोमैटिन होती है वो एग्रीगेट जाएगा पेरिफेरल अंडर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट विल कंडेंस लाइक अ डेंस मास, और यू कैन सी ब्रेकिंग ऑफ योर न्यूक्लियस इनटू 2 or more फ्रेगमेंट। फिर साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स हमने देखे थे उस पिक्चर में, जो दे आर इन योर रॉबिन्स आल्सो। सो व्हाट हैपेंस, साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स हो रहा है एंड इट इज रिमूव द फॉलिंग ऑफ द एपोटोटिक बॉडीज इन टोटो, लाइक सेल एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म यू हैव। तो एपोटोटिक एक्सटेंसिव ब्लेबिंग होती है, जो ब्लेबिंग आपकी नेक्रोसिस और एपोटोसिस में देखोगे, एपोटोसिस की ब्लेबिंग इट इज मोर प्रोमिनेंट, ठीक है। सो हियर व्हाट देयर इज, एंड आफ्टर ब्लेबिंग देयर इज फ्रैगमेंटेशन ऑफ द डेड सेल्स, हियर यू हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड एपोटोटिक बॉडीज, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हो रहा, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनसर्कल्स द सेलुलर कंटेंट, ठीक है। So that plasma membrane bound apoptotic body, it is composed of your cytoplasm and tightly packed organelles, ठीक है, वो फिर
निकलता है इस एपोटोटिक बॉडी के फॉर्म में, देन फॉल्स ऑफ फ्रॉम योर सेल। देन जब वो एपोटोटिक बॉडी फॉल ऑफ हो गई है हमारे सेल से, so what happens, so now they will be phagocytosed by the macrophage system, and then so वहां पे वो लीक आउट नहीं होने देगा सेलुलर कंटेंट को, फट से वो सेल फॉल ऑफ हुआ, वो दैट विल बी रिमूव्ड बाय द मैक्रोफेज सिस्टम। सो ऑन एचई स्टेन, जब हम एचई स्टेन हम करते हैं सेक्शंस पे, तो अगर हमें देखना है कि एपोटोटिक बॉडीज को आप कैसे, एपोटोटिक सेल्स या एपोटोटिक बॉडी कैसे आइडेंटिफाई करोगे एचई सेल पे, एचई स्टेन साइड पे, so it will look like a intensely eosinophilic cytoplasm with fragment of dense nuclear chromatin. Okay. So now coming to mechanism of apoptosis. ठीक है, so Caspases word आपको याद रखना है, ठीक है। apoptosis शुरू होती है by activation of your Caspases. So Caspases क्या है? So Caspases आप वर्ड समझो, इसके नंबर्स भी होते हैं, ठीक है, 3, 6, 8, ये हम पढ़ेंगे ग्रेजुअली जब आप नेक्स्ट स्लाइड्स में मूव ऑन करते हैं। तो इट इज बेसिकली अ सिस्टीन प्रोटेज एंजाइम दैट क्लीव्स द प्रोटीन आफ्टर एस्पार्टिक रेसिड्यूज। So just remember, cysteine protease enzyme है, has important role in apoptosis. Only when this is activated, the process of apoptosis will continue. ठीक है, तो और इन कैस्पेस का भी एंजाइमेटिक क्लीवेज होना जरूरी है टू बिकम, यूजुअली से हम जो कोई भी एंजाइम होता है वो एक्टिव होता है, प्रो एंजाइम फॉर्म में होता है, फिर वो एंजाइम एक्टिव फॉर्म में आता है, ठीक है। सो वी कैन सी जो भी एक्टिव कैस्पेस के प्रेजेंस को अगर आप डिटेक्ट करते हो, दैट इज की मार्कर। सो नाउ देयर आर टेक्निक्स टू मेजर दीज एक्टिव कैस्पेसेस, सो दैट विल प्रेडिक्ट या दिस सेल इज अबाउट टू अंडरगो एपोटोसिस, ठीक है। So that way it can be a very useful marker for us to detect that this cell is about to undergo apoptosis. So points to remember before we move on to proper mechanism, that there is a regulation of these enzymes depends, जो Caspases enzyme है, इनका regulation will depend on a fine balance and presence of pro-apoptotic and anti-apoptotic protein. देखो जब भी कोई सेल डेथ की तरफ जा रहा है, there will be numerous factor. Pro-apoptotic मतलब वो उसको सेल डेथ को एग्रेवेट करेगा, anti-apoptotic is like it will prevent the cell death, ठीक है। डेथ होने से पहले there are many factors which will prevent it, many factors which will increase it, ठीक है। So we need to have a balance. So ये regulation कौन सा एंजाइम प्रोटीन ज्यादा एक्टिवेटेड हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर cell will, like it will be decided whether the cell will die or not. So when we start the process of apoptosis, so what you have one initiation phase, ठीक है। initiation phase मतलब start हो रही है, तो start हो रही है apoptosis that has two stem, ठीक है, two types you can say. One is mitochondrial pathway and is also known as intrinsic. Suppose exam में अगर आपके आता है intrinsic pathway, कभी आ सकता है right short order mitochondrial pathway, so both are same, ठीक है। Then you have initiation can be extrinsic, by extrinsic pathway also, that is a death receptor pathway, ठीक है। So first is your initiation phase. Initiation phase you have two types, ठीक है। Here what happens, your Caspases will become catalytically active, ठीक है, and then further it's like a Caspase को एक्टिवेट कर रहा है, तो यू हैव अ फ्लो चार्ट ऑफ दैट, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे इंट्रिंसिक, डेथ रिसेप्टर पाथवे एक्सट्रिंसिक। सो दिस विल कल्मिनेट बोथ, चाहे सेल डेथ का इनिशिएशन माइटोकॉन्ड्रियल इंट्रिंसिक हो या डेथ और एक्सट्रिंसिक हो, ठीक है, बट आपके ये मर्ज होंगे आपके एग्जीक्यूशन फेज पे, ठीक है। एग्जीक्यूशन फेज में क्या होगा, जो टर्मिनल कैस्पेसेस है उसके भी नंबर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सेल्स को फ्रैगमेंटेशन कराने के लिए इंक्रीज करेगा, ठीक है, प्रमोट करेगा बेसिकली। सो इनिशिएशन फेज टू टाइप्स, either way cell can undergo death and then they execute. So it's like this mitochondrial death receptor execution pathway, so that will promote your cellular fragmentation, ठीक है। So this pathway intersect as I showed you, ठीक है। So generally they are induced in different conditions. कुछ cells mitochondrial pathway से death, they undergo death, कुछ cells will undergo death by following the death receptor pathway. So they have initiating agents, दोनों के different है, molecules different है, and they have distinct role in physiology and in causing death. So see here, left side में देखो mitochondrial pathway, intrinsic pathway, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, this figure we can like discuss at the end once you are done with this. So what I just want to show here is,
सी माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे इंट्रिंसिक, डेथ रिसेप्टर पाथवे एक्सट्रिंसिक, ठीक है। तो यहां से ये कर रहे हैं, उसके बाद ये आते हैं आपके एग्जीक्यूशन पाथवे पे। एग्जीक्यूशन के बाद फिर जो एपोप्टोटिक बॉडी फॉर्म हुई है वो फैगोसाइटोज्ड हो जाएगी, ठीक है। So mitochondrial or intrinsic pathway, see what happens here is majority of your apoptosis is followed by this intrinsic pathway, ठीक है, in majority of physiologic as well as pathological conditions. So यहाँ क्या हो रहा है, there is increased permeability to your mitochondrial outer membrane. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो हियर देन प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम दोस पोर इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन है, उसमें अगर परमिएबिलिटी उसकी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, जो प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया में फिट है तो वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ऑर्गेनली है, ठीक है, sorry, which contain your many proteins like cytochrome C, ठीक है। रिमार्केबल प्रोटीन एग्जाम्पल है साइटोक्रोम सी, इंपॉर्टेंट है। साइटोक्रोम सी इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड, ठीक है, बिकॉज साइटोक्रोम सी वी रिक्वायर इट फॉर एटीपी, like for sustaining the cell viability. In producing your ATP also, when you see production of ATP, there the cytochrome C has a prominent role, ठीक है। तो ATP तो हमें चाहिए ना हमारी सेल वायबिलिटी के लिए, ठीक है, इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सो बट सी साइटोक्रोम सी एक तरफ तो हमारे ATP को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, फिर जब माइटोकॉन्ड्रिया से जब साइटोक्रोम सी बाहर आ जाता है तो वो सेल डेथ भी कॉज करा रहा है। सो इट इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड, हम उसको उस सेंस में कह रहे हैं, ठीक है। बट ये जब साइटोप्लाज्म में रिलीज हो रहा है तो दैट इज नॉट हेल्दी फॉर सेल, बिकॉज इट विल इनिशिएट द एपोप्टोसिस, ठीक है, बाय releasing the pro-apoptotic molecules into the cytoplasm, right? So this pro-apoptotic protein जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज हो रही है, that is cytochrome C, ठीक है, that is determined by the integrity, हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कितना स्ट्रॉन्ग है, इंटीग्रेट कितनी इंटीग्रिटी है उसकी हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की कि वो रिलीज ना करे साइटोक्रोम सी को साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये उस इंटीग्रिटी को भी कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो वो कंट्रोल होता है हमारे BCL2 फैमिली ऑफ प्रोटीन से। सो BCL फैमिली में देयर आर मोर देन 20 मेंबर्स, ठीक है। तो BCL फैमिली जब हम डिस्क्राइब करते हैं, सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है उसको इंटैक्ट रखने का काम हमारे BCL फैमिली का है, ठीक है। तो BCL फैमिली में यू हैव प्रोएपोटोटिक फैक्टर्स, एंटी एपोटोटिक और BCL2 होमोलॉगी, जो BH डोमेन्स के अकॉर्डिंग हम उसको डिफाइन करते हैं। सो एंटी एपोटोटिक ये 3 इंपॉर्टेंट हैं इसके, BCL2, BCLXL, MCL1, these are the principal member of anti apoptotic group। तो बैलेंस चाहिए ना, तो सब कुछ होता है इसके अंदर, ठीक है, बट यू नीड अ बैलेंस in these factors so that किसका पलड़ा भारी है इसके अकॉर्डिंग ही सेल डेथ होगी या फिर सेल सर्वाइव करता है, ठीक है। तो जो ये BCL2, BCLXL, MCL1, so please remember these names, these are the principal members। इसमें 4 BH डोमेन होती है, ठीक है। सो दीज प्रोटीन, जो ये सारे प्रोटीन्स हम पढ़ते हैं, एंटी एपोप्टोटिक, प्रो एपोप्टोटिक, कहाँ होता है ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या साइटोजोल में, ठीक है। सो ये वहां रिजाइड करता है। सो दीज विल द एंटी एपोप्टोटिक है ना, तो सेल को डेथ होने नहीं देगा ये, तो दिस विल कीप व्हाट योर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को रिजिड बना के रखेगा, नॉट परमिएबल, ठीक है। सो लीकेज नहीं होगी साइटोक्रोम सी की, साइटोक्रोम सी रिलीज नहीं हुआ तो सेल डेथ शुरू नहीं होगी, ठीक है। प्रो एपोटोटिक इसके हैं बैक्स एंड बैक, ये एपोप्टोसिस कराने में मदद करते हैं, ठीक है। 2 प्रोटोटिपिक मेंबर्स इसके हैं बैक्स एंड बैक। सो ऑन एक्टिवेशन इसके 3 BH डोमेन्स होते हैं, एंड हियर व्हाट हैपेंस ऑन एक्टिवेशन, जो बैक्स एंड बैक है ये ऑलिगोमराइज हो रहा है, ठीक है। ऑलिगोमराइज मतलब ग्रुप बनाना शुरू करता है ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, उसके बाद ये ग्रुप्स में आता है, बैक्स एंड बैक के ग्रुप्स बन रहे हैं। ऑलिगोमराइज मतलब एक आया, दूसरा आया, ऐसे करके छोटे छोटे ग्रुप्स में आते हैं, तो उससे क्या वो इंक्रीज करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी को, ताकि साइटोक्रोम सी आपके साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाए, ठीक है। एंटी एपोप्टोटिक जो हमने पढ़ा BCL2, BCLXL, ठीक है, MCL1, उनका काम है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को रिजिड रखना, not allowing them to release cytochrome C into the cytoplasm, and pro-apoptotic का काम है बैक्स एंड बैक का कि ऑलिगोमराइज ग्रुप बना के माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी को
बढ़ाना, परमेबल मतलब उनको एक तरह से परमिएट कराना, ताकि जो साइटोक्रोम सी है वो आपके साइटोप्लाज्म में बाहर आ जाए। ठीक है। फिर कुछ हमारे एपोप्टोसिस के इनिशिएटर्स भी होते हैं जो कि इनिशिएट करने में हेल्प करते हैं। नॉट यू कैन से प्रॉपर प्रोटीन फैक्टर्स, बट यू कैन कॉल देम एज इनिशिएटर्स। सो ये वर्ड्स पे आप ध्यान रखो, क्योंकि एमसीक्यूज में, सो इफ यू हैव दिस इनिशिएटर ऑप्शन, तो इनिशिएटर में ये बैड बिम बिड प्यूमा नेक्सा नॉक्सा, सॉरी, सो दे हैव वन बीएच डोमेन। ठीक है, सो दे आर नोन एज BH3 ओनली प्रोटीन्स। सो ये activities of these are modulated by sensors of cellular stress। कोई भी injurious agent है, cellular stress हो रही है, and the cell needs to undergo apoptosis, सेल को हटाना है। ठीक है, तो ये इनिशिएटर काम करना शुरू कर देते हैं, तो दे कैन इनिशिएट apoptosis। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर एंड सर्वाइवल सिग्नल्स आए, वो स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटी एपोटोटिक। ऑब्वियसली ग्रोथ फैक्टर है, सर्वाइवल सिग्नल है, तो वो क्या करेगा, सेल को सर्वाइव करने में तो हेल्प करेगा ना। ठीक है, तो वो सेल को सर्वाइव करेगा, तो जो हमारे एंटी एपोटोटिक फैक्टर्स हैं वो उसको हेल्प करेंगे। ठीक है, सो BCL2 प्रोटेक्टिंग सेल्स है, दे विल प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम एपोटोसिस। सो अगर हम ग्रोथ फैक्टर या सर्वाइवल सिग्नल विड्रॉ कर लें, ठीक है, तब क्या होगा, तो BCL2 फिर नहीं, तब प्रो एपोटोटिक फैक्टर्स काम आना शुरू हो जाते हैं। तो यही हमने सेकंड लाइन में पढ़ा। फर्स्ट लाइन ये कह रहा है हमारा कि ग्रोथ फैक्टर्स और सर्वाइवल सिग्नल्स जो होंगे, दे विल हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ योर एंटी एपोटोटिक प्रोटीन्स, दैट इज BCL2, BCLXL, MCL1। सो दैट विल प्रोटेक्ट योर सेल फ्रॉम undergoing cell death by apoptosis। So second is your the cells are deprived of cell survival signal। तो जब अब वही है कि सेकंड पॉइंट ये है कि अगर हमारे सेल को हम सर्वाइवल सिग्नल्स ना दें, तो क्या होगा, डीएनए डैमेज होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस होगी ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन। तो ये सारे इवेंट जो है ना, डीएनए डैमेज है, ER स्ट्रेस हो रहा है, या फिर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है, तो इन सबको रिमूव कराना है बॉडी से। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, अब हमारा जो प्रो एपोटोटिक फैक्टर्स है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो प्रोटोटाइप कौन से प्रो एपोटोटिक के, हमारे बैक्स एंड बैक, सो दैट विल सपोर्ट एपोटोसिस। कैसे सपोर्ट करेगा, अभी हमने पढ़ा था, बैक्स एंड बैक क्या करता है, ऑलिगोमर फॉर्म करता है। ठीक है, सो विच विल इंसर्ट इनटू योर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और लीक कराएगा उससे। that will it causes a leakage and your cytochrome C जो कि tightly bound उसमें अंदर में पड़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के, वो लीकेज की वजह से वो साइटोक्रोम C आपके साइटोप्लाज्म में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, so here what you can see is, so synthesis of BCL2, BCLXL, their synthesis is decreased as their transcription या उनका जो प्रोसेस है एक्टिवेट होने का या फॉर्म होने का, यू कैन से। तो BCL2, BCLXL ये तभी फॉर्म होते हैं जब सेल के पास ग्रोथ सिग्नल होता है। ठीक है, ग्रोथ सिग्नल आप हटा लोगे तो प्रो एपोटोटिक फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब तक ग्रोथ फैक्टर सिग्नल्स रहता है तब तक हमारे एंटी एपोटोटिक फैक्टर्स जो होते हैं दे आर मोर एक्टिव। ठीक है, सो नेट रिजल्ट ऑफ बैक एंड बैक एक्टिवेशन coupled with loss of protective function of anti-apoptotic member is release of several mitochondrial protein in the cytoplasm like cytochrome C। मतलब क्या है इसका, बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया ये। ठीक है, तो ये है कि जब आपने सेल ग्रोथ फैक्टर्स हटा लिए, ठीक है, तो आपके बैक्स एंड बैक एक्टिवेट हो गए। ठीक है, और जब आपने ग्रोथ फैक्टर हटा लिया है तो आपके BCL2 और BCLXL जो एंटी एपोटोटिक फैक्टर्स है वो डाउन हो जाएंगे। ठीक है, सो यू हैव बैक्स एंड बैक एक्टिवेशन विद लॉस ऑफ योर एंटी एपोटोटिक फैक्टर्स लाइक BCL2 एंड BCLXL। तो क्या होगा, membrane permeability will increase from, and your mitochondrial proteins like cytochrome C will come out from that leakage into your cytoplasm, and then you have your activation of caspasis cascade। सो अब देखो, जब साइटोक्रोम सी हमारा साइटोसोल में आ चुका है, ठीक है, तो अब क्या करेगा, साइटोक्रोम सी अकेले कुछ नहीं कर सकता, सो इट नीड्स एन एपोटोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1, उसको हम कहते हैं APAF1। सो APAF1 के साथ कंबाइन करता है आपका साइटोक्रोम सी, इट फॉर्म्स अ मल्टीमरिक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज एपोटोसोम। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स जो APAF1 साइटोक्रोम सी, इट विल कंबाइन विद योर caspase 9। सो caspase 9 आप याद रखो, 9 and 3, these are critical initiator caspase of mitochondrial pathway। Mitochondrial pathway मतलब initiation pathway का intrinsic pathway, also known as mitochondrial pathway। Okay, so
दिस कॉम्प्लेक्स जो एपोटोजोम है, व्हाट इज एपोटोजोम? इट इज APF1 plus cytochrome C. So that combination, that apoptosome combines with your caspase 9 and promotes the autolytic cleavage. So now जब वो एपोटोजोम कंबाइन करता है caspase 9 के साथ, so your caspase 9 become catalytically active. ठीक है, कि एक्टिव फॉर्म के बाद क्या करता है? नाउ दिस एक्टिव कैस्पेज 9 इट विल ट्रिगर द कैस्केड ऑफ कैस्पेज एक्टिवेशन. नीचे डाउनस्ट्रीम जो इसके बहुत सारे कैस्पेजेस है, अदर प्रो कैस्पेज जैसे कैस्पेज 3. ठीक है, कैस्पेज 3 इज नॉट इन दिस इनिशिएशन, कैस्पेज 3 इज इन एग्जीक्यूशन पाथ. ठीक है, तो 9 इज योर इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में, यू रिमेंबर कैस्पेज 9. ठीक है, एग्जीक्यूशन तो कन्वर्ज पाथवे हो गया ना, चाहे माइटोकॉन्ड्रियल से आए चाहे डेथ रिसेप्टर से आए. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल वाले साइड से यू हैव कैस्पेज 9. नाउ कैस्पेज 9 इज एक्टिव, फिर एग्जीक्यूशन पाथवे की जो नीचे कैस्पेज 3 है वो उसको एक्टिवेट कराएंगे. ठीक है, सेम इसी प्रोसेस में जब आप माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे देख रहे हो, कुछ प्रोटीन्स होते हैं लाइक स्मैक है, डियाब्लो है, व्हाट हैपन, दे विल एंटर अदर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन जो कि परमेबिलिटी की वजह से बाहर आ रहे हैं. ठीक है, सो दे विल बाइंड टू एंड न्यूट्रलाइज द साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन. कुछ जैसे अब साइटोक्रोम सी के अगेंस्ट भी तो निकलेंगे ना माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, तो वो होते हैं फिजियोलॉजिकल इनहिबिटर्स ऑफ एपोटोसिस. साइटोक्रोम सी का रिलीज होना साइटोप्लाज्म में ही डिनोट नहीं करेगा कि अरे साइटोक्रोम सी तो आ गया साइटोप्लाज्म में, अब तो सेल की डेथ होनी है. उसको भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म फेस करना पड़ता है. वहां पे आते हैं आपके inhibitors of apoptosis, उसको कहते हैं IAPs, physiological inhibitors of apoptosis, SMAC and Diablo. So they will also be released from your they are also the mitochondrial protein जो कि outer mitochondrial membrane के rupture या leakage होने के बाद वो cytoplasm में वो भी आता है along with your cytochrome C. So normal function क्या है IAPs का? It's to block the inappropriate activation of caspase. ठीक है, including your execution caspase 9, 3, इन सबको ये उसके इनअप्रोप्रिएट, ऐसे नहीं कि ऑटोमेटिकली वो एक्टिव हो गया, उसको भी रोकने के लिए दे हैव योर प्रॉपर ब्लॉकेज. तो यू कैन से दे विल ब्लॉक द इनअप्रोप्रिएट एक्टिवेशन ऑफ दोस कैस्पेसेस. एक तरह से रेगुलेटरी मैकेनिज्म है आईएपीज फॉर दोस एपोटोटिक फैक्टर्स. सो आईएपी इनहिबिशन परमिट्स, अगर फिर ये तो आईएपी हुआ, बट अगर हम आईएपी को भी इनहिबिट कर देते हैं तो व्हाट हैपेंस, देयर इज इनिशिएशन ऑफ कैस्पेज कैस्केड. So here you see what happens, what is happening. See, what you can see is here, ये एक वाइबल सेल है. ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ सिग्नल मिल रही है, ये जो ए फिगर है. ठीक है, तो क्या हो रहा है, ग्रोथ फैक्टर है. तो ग्रोथ फैक्टर जब होता है तो एंटी एपोटोटिक फैक्टर्स दे बिकम मोर एनर्जेटिक, सो दे ग्रो. सो वो सेल्स को प्रोटेक्ट करेंगे कि सेल्स को दे नीड नॉट अंडरगो एपोटोसिस. ठीक है, बट और ये प्रोटेक्ट करेगा इसको. तो दीज आर एंटी एपोटोटिक प्रोटीन BCL2 और BCLXL. सो ये साइटोक्रोम सी हमारा माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन है, ये अंदर पड़ा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे लीकेज नहीं हो रही है, so there is no release of cytochrome C. So this cell survives. राइट साइड में देखो आप क्या है, एपोटोसिस हुई तो क्या हुआ, हमने कहा था ना कि ग्रोथ सिग्नल आप हटा लोगे तो क्या होगा, एंटी एपोटोटिक फैक्टर्स नीचे चले जाएंगे बिकॉज दे नीड ग्रोथ सिग्नल फॉर देयर प्रोडक्शन. सो कोई डीएनए डैमेज हो रहा है या फिर अब ग्रोथ सिग्नल हटा लो तो क्या होगा, जो BH3 ओनली प्रोटीन जो है, जो एक्टिवेशन ऑफ योर सेंसर्स ऑफ एपोटोसिस वो एक्टिवेट हो जाते हैं. ठीक है, तो आपके बैक एंड बैक्स एक्टिवेट हो रहा है. ठीक है, सेंसर्स ऑफ प्रोटीन कौन से थे, बिड है, प्यूमा है, नॉक्सा है. सो वो सारे आपके सेंसर्स हैं प्रोटीन के, वो एक्टिवेट हुए, फिर वो क्या कर रहे हैं, BCL2 के एक्शन के अगेंस्ट काम करना शुरू कर जाते हैं. सो दीज ऑल फेवर्स एपोटोसिस, योर सेंसर्स ऑफ एपोटोसिस, बिड बैक्स एंड बिड, प्यूमा, नॉक्सा, ये सारे. एंड देन व्हाट हैपेंस, देयर इज एक्टिवेशन ऑफ बैक्स एंड बैक. हमने पढ़ा था ना कि बैक्स एंड बैक आता है, वो ऑलिगोमर बनाता है, फिर वो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ाता है. तो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, साइटोक्रोम सी और दूसरे प्रोटीन भी बाहर आ जाएंगे. उसके बाद हमारा कैस्पेज कैस्केड एक्टिवेट हो जाएगा. माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे के साइड कैस्पेज 9, तो सेल विल अंडरगो एपोटोसिस. ठीक है, फिर कमिंग टू द डेथ रिसेप्टर पाथवे. ठीक है, इनिशिएटेड बाय, हियर व्हाट हैपेंस, देयर इज अ एंगेजमेंट ऑफ मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डेथ रिसेप्टर्स. डेथ रिसेप्टर्स क्या होते हैं, सो दीज आर द मेंबर्स ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर फैमिली है, जिसमें एक साइटोप्लाज्मिक डोमेन होता है विच इज इन्वॉल्व इन योर प्रोटीन इंटरेक्शन. ठीक है, इसमें आपको यू हैव टू रिमेंबर फास्ट CD95. ठीक है, दीज आर द बेस्ट नोन डेथ रिसेप्टर.
टाइप 1 TNF रिसेप्टर पढ़ोगे और एक है फास्ट, दैट इज CD95. दिस आल्सो कम्स इन समटाइम्स इन MCQ. ठीक है, सो फास्ट जब भी कोई रिसेप्टर होता है ना, तो फॉर फंक्शनिंग इट रिक्वायर्स अ लाइगेंड. सो यू हैव अ फास्ट लाइगेंड. सो फास्ट combines your fast ligand. So this fast ligand is expressed in your T cells. So T cell क्या करते हैं, वो हमारे immunity में role play करते हैं. So when we'll read the chapter of immunity, then you will see. So T cell that will recognize the self antigen, eliminate the self reactive lymphocyte. So वो fast ligand की help से करेगा. ठीक है, देख लो यहाँ पे, तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है. फास्ट लाइगेंड, फास्ट प्रोटीन्स जो डेथ रिसेप्टर प्रोटीन, ठीक है, CD95. तो ये फास्ट लाइगेंड के साथ जब फास्ट कंबाइन करता है तो ये फैड एक फॉर्म हुआ. ठीक है, फास्ट एसोसिएटेड द डेथ डोमेन. ये ऑटोलिटिक एक्टिवेट कराता है प्रोकैस्पेज 8 को. 9 हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में, कैस्पेज 9. प्रोकैस्पेज 9 गेटिंग ऑटोलिटिकली एक्टिव, गेटिंग एक्टिवेटेड टू कैस्पेज 9 एंड देन हेल्पिंग इन एग्जीक्यूशन पाथवे. ये प्रोकैस्पेज 8 है, वो एक्टिव हो रहा है कैस्पेज 8, तो वो फिर एग्जीक्यूशन पाथवे पे नीचे चला जाएगा एपोप्टोसिस के. ठीक है, तो फास्ट लाइगेंड बाइंड्स टू फास्ट. तो क्या होता है, हमने देखा ना कि एक फास्ट लाइगेंड फास्ट, तो वो 3 फास्ट लाइगेंड फास्ट का मॉलिक्यूल बन गया. ठीक है, सो देयर साइटोप्लाज्मिक डेथ डोमेन जो होता है वो एक फॉर्म करता है बाइंडिंग साइट फॉर एडेप्टर प्रोटीन. तो एक गुच्छे में आ गया ना फास्ट, तो वो फैड हो गया एक तरह से, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन. सो वंस अटैच्ड टू दिस कॉम्प्लेक्स फैड जो होता है ना, ये बाइंड करता है हमारे इनएक्टिव कैस्पेज 8 और कैस्पेज 10 यू कैन से. सो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में यू नीड टू रिमेंबर कैस्पेज 9. Here you need to remember caspase 8 and 10. So these are the main caspases involved in death receptor pathway. फिर क्या होगा, तो ये ऑटोलिटिक क्लीवेज एंड जनरेशन ऑफ एक्टिव. सो जब फैड बाइंड कर लेता है कैस्पेज, इनएक्टिव कैस्पेज 8 से, तो योर कैस्पेज 8 becomes active. So this caspase 8 activated form, this will initiate the same executioner pathway जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया. तो इनिशिएशन फेज माइटोकॉन्ड्रियल, डेथ रिसेप्टर, कन्वर्जिंग. So these both are clear. Intrinsic mitochondrial, extrinsic death receptor, converging into your execution pathway, and then execution pathway हम पढ़ते हैं. जो एक्सट्रिंसिक, उससे पहले जो एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक पाथवे में हमने पढ़ा था IAP, इनहिबिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस. जब साइटोक्रोम C रिलीज हो रहा है, उसके साथ साथ IAP भी रिलीज होते हैं, जो कि चेक रखते हैं उस पे. बट अगर IAP भी इनहिबिट हो जाता है तो फिर एपोप्टोसिस अपने आप आगे बढ़ती है. ठीक है, तो सिमिलरली एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी आप एक टर्म याद रखो, फ्लिप. ठीक है, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे को इनहिबिटेड बाय, जैसे उसके लिए वो इनहिबिट हो रहा था IAP से, ये इनहिबिट हो रहा है फ्लिप से. ठीक है, सो ये बाइंड कर जाएगा आपके प्रोकैस्पेज 8 से, सो इट विल ब्लॉक द फैड बाइंडिंग. फैड विल नॉट बी एबल टू बाइंड टू कैस्पेज 8, क्योंकि फैड वो फ्लिप बाइंड कर जा रहा है कैस्पेज 8 के साथ, प्रोकैस्पेज 8 के साथ. तो फैड इज नॉट एबल टू बाइंड टू प्रोकैस्पेज 8, तो प्रोकैस्पेज 8 कैस्पेज 8 में फॉर्म नहीं हो पाएगा. ठीक है, सो सम वायरस एंड नॉर्मल सेल्स जो होते हैं, दे हैव फ्लिप मैकेनिज्म. तो अपने आप को बचाने के लिए दे हैव दिस फ्लिप. कुछ वायरस हो गए ना, वो एपोप्टोसिस मतलब वो सेल डेथ जाएंगे ही नहीं, एंड दे विल नॉट अंडरगो सेल डेथ बिकॉज दे विल हैव दिस फ्लिप मैकेनिज्म. ठीक है, तो फ्लिप क्या करेगा, वो बाइंड कर जाएगा कैस्पेज 8 से, प्रोकैस्पेज 8 से, तो वो कैस्पेज 8 बनने ही नहीं देगा. ठीक है, so through intrinsic and extrinsic pathway of apoptosis, so they are basically interconnected. चाहे intrinsic से आ रहा हो, extrinsic से आ रहा हो, अब converge हो रहा है extrinsic पे. ठीक है, execution phase pathway से what happens? So intrinsic and extrinsic pathway converge to activate a caspase cascade. So they will initiate final phase है एक तरह से, ये कह रहे हो. Intrinsic में हमने पढ़ा caspase 9, extrinsic में पढ़ा हमने caspase 8 and 10. So अब caspase execution pathway पे, तो activate करना है हमें execution वाले caspases, वो होती है 3 and 6. So once activated, caspase 3, 6 अगर activate हो गया तो they will cleave an inhibitor of DNase, making अब DNase एंजाइम, DNase जो है उसको एक्टिवेट कराना है ताकि वो फ्रेगमेंट करे. तो DNase क्या करेगा, इट विल स्टार्ट द DNA डिग्रेडेशन. ठीक है, सो अब DNA डिग्रेड होना शुरू हो रही है. ठीक है, सो कैस्पेज प्रोटियोलाइज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड प्रमोट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ योर न्यूक्लियर. अब जो न्यूक्लियर फ्रेगमेंट जो एपोप्टोटिक बॉडी हमारी अब रिलीज हो गई. ठीक है, अब आ रहा है रिमूवल ऑफ डेड सेल्स, दैट इज बाय फैगोसाइटोसिस. तो ये बाइट साइज फ्रैगमेंट्स होते हैं ना, इनको ये एडिबल है, इस तरह से खाना है ये फैगोसाइट्स के लिए. ठीक है, सो दे विल अंडरगो मेनी चेंजेस. ठीक है, इसमें क्या है कि सेलुलर कंटेंट रिलीज नहीं होना चाहिए. फैगोसिटिक सिस्टम हैज टू एक्ट फास्ट सो दैट द सेल्स डोंट रिलीज, दीज डेड सेल्स डोंट रिलीज देयर एंजाइम्स. So before they lose their membrane integrity, these cells have to be engulfed by the phagocytes. ठीक है,
एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फॉस्फोडाइल सेरीन जो होती है वो हमारे इनर लेफ्ट लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रहती है, और एपोटोटिक सेल्स जो सेल डेड हो जाते हैं वो फ्लिप आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड फ्लिप्स आउट ऑन द आउटर लेयर। ये जो हमने कहा ना फाइंड मी एंड ईट मी, ये उसके लिए है। तो एपोटोटिक, क्योंकि सेल तो रिलीज हुआ नहीं ना, सेलुलर कंटेंट रिलीज हुआ नहीं, एंजाइम बाहर आए नहीं, तो एपोटोटिक सेल्स कैसे आइडेंटिफाई होंगे हमारे फैगोसाइट से? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हेल्दी सेल्स में क्या है, फॉस्फोडाइल सेरीन इनर लीफलेट पे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। जो एपोटोटिक सेल्स होते हैं उसमें जो होता है ये फॉस्फोडाइल सेरीन, इट फ्लिप्स आउट ऑन योर आउटर लेयर। सो नाउ these dead cells, these have phosphoryl serine on their outer layer, so which can be easily recognized by your macrophage receptor, and this will be detected by dye, which is annexin, so we can predict this cell are apoptotic ones, ठीक है। So these cells which die by apoptosis, they secrete soluble factors. तो ये soluble factors होते हैं, फिर फॉस्फोडाइल सेरीन हो गया आउटर मेम्ब्रेन पे, ये सब अट्रैक्टेंट है कि हाँ फैगोसाइट्स आओ हमें इंगल्फ करो, जो एपोटोटिक बॉडीज है उनका स्टेटमेंट होगा ये बेसिकली, ठीक है। तो दीज एपोटोटिक बॉडीज में बी कोटेड विद नेचुरल, कैसे डिटेक्ट कर रहा है ना, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हम बेसिकली कि एपोटोटिक बॉडीज जो होती है उसको कैसे डिटेक्ट करेगा फैगोसिटिक सिस्टम, ठीक है। तो वो ईट मी सिग्नल्स है इनके, तो बहुत सारे सॉल्युबल फैक्टर्स रिलीज करता है जो फैगोसाइट्स डिटेक्ट कर लेते हैं। कुछ एपोटोटिक बॉडीज में नेचुरल एंटीबॉडीज होंगी जो वो डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज so one word is, so now the cells are eaten up, engulfed by the phagocytes. So this is limiting your inflammatory reaction as there is no release of the cellular content. Efferocytosis क्या है? ये है process of apoptotic cells phagocytosis. So efficient कह रहे हो, efferocytosis, efficient words you can say correlate with it. So efficient that the cells disappear within minutes with no trace, ठीक है, क्योंकि वो कंटेंट रिलीज नहीं होना है, इन्फ्लेमेशन नहीं होने देना है, ठीक है। सो द फाइनल पिक्चर, सी एपोटोसिस में बेसिक मैकेनिज्म हमारा होता है इनिशिएशन फेज और माइटोकॉन्ड्रियल फेज, एग्जीक्यूशन फेज और डेथ रिसेप्टर, ठीक है। तो सॉरी, इनिशिएशन एग्जीक्यूशन फेज इज डिफरेंट, सॉरी इनिशिएशन फेज में यू हैव माइटोकॉन्ड्रियल एंड डेथ रिसेप्टर व्हिच आई वाज सेइंग। सो इसी को हम इंट्रिंसिक कह रहे हैं और डेथ रिसेप्टर को हम एक्सट्रिंसिक कह रहे हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक हमने पढ़ा, कोई भी ग्रोथ फैक्टर आप विड्रॉ कर लो या डीएनए डैमेज हो रहा है, बेसफोलेट प्रोटीन हो रही है, तो BCL2 फैमिली सेंसर्स तो वो एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है। तो BCL2 फैमिली अफेक्टेड, सो प्रोटीन BCL2 फैमिली के सेंसर्स लाइक बैक्स एंड बैक जो कि प्रो एपोटोटिक है वो एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि जो ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए होता है BCL2 BCLXL जो कि एंटी एपोटोटिक है। जब ग्रोथ फैक्टर विड्रॉ कर लोगे तो एंटी एपोटोटिक फैक्टर ऐसे ही काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो BCL2 तो बैक्स एंड बैक एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद तो वो माइटोकॉन्ड्रियल परमिबिलिटी को बढ़ाएगा। तो परमिबल होने के बाद साइटोक्रोम C और अदर प्रो एपोटोटिक प्रोटीन बाहर आ जाएंगे, फिर वो इनिशिएटर कैस्पेसेस, तो वो कैस्पेसेस 9 को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। और इसका एंटागोनिस्ट होता है BCL2 BCLXL, ठीक है। डेथ रिसेप्टर जो एक्सट्रिंसिक पाथवे जो हमने डेथ एसोसिएटेड डोमेन वाला पढ़ा था उसमें फास्ट लाइगेंड का रोल है, ठीक है। वो फिर फास्ट लाइगेंड फास्ट इट कंबाइंस विद इट्स लाइगेंड, सो इट फॉर्म्स अ ग्रुप, सो इट्स लाइक अडैप्टर फॉर प्रोटीन अटैचमेंट फैग। तो जब उसमें फिर वो एक्टिवेट करता है हमारे कैस्पेसेस 8 और 10 को, ये हो गया इनिशिएटर कैस्पेस। इनिशिएटर कैस्पेस कौन कौन से हैं? So you have your initiator caspase 9 for mitochondrial, and initiator caspase you have for death receptor extrinsic pathway you have caspase 8 and 10. So now they will undergo execution phase. Execution phase में क्या हो रहा है? DNA degrade होना है हमारा, ठीक है। So इसमें क्या होगा? Endonuclease activation होती है, cytoskeleton breakdown, DNase enzyme activate होता है. So nucleus will undergo fragmentation, cytoplasmic bleb, finally leading to formation of our apoptotic bodies. So एपोटोटिक बॉडीज में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि ईट मी फाइंड मी सिग्नल्स वाला, फाइंड मी ईट मी वाला सिग्नल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो द फैगोसिटिक सेल्स विल कम एंड engulf it, and it is so efficient and fast, so उस प्रोसेस को हम कहते हैं एफेरोसाइटोसिस। See, now we are done with apoptosis. Thank you so much for your patient hearing, and if you have any doubts, so you can mail me drmanjrik@gmail.com, and I would request you to kindly like and subscribe my channel so that you get notification for the next lectures. And once again, happy Pathology Day to all of you. Keep calm and love pathology. Thank you so much.